لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو فحش کلامی علل اعلان کرتے ہیں. رات کو زنا ہو گیا ہے فلاں کے ساتھ، فلاں ہو گیا ہے، اس کو مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا. میاں یہاں نماز کی قضا کے لیے بھی شریعت نے کہا ہے کہ اس طرح پڑھو کہ لوگوں کو خبر نہ ہو. گناہ کا گواہ نہ بناؤ کسی کو. اظہار گناہ یہ اور بڑا گناہ ہے. یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب اندازہ کرو ایک چھوٹی ہوئی نماز کو بندہ جب ادا کرنے آ رہا ہے تب شریعت نے اتنا حکم دیا ہے کہ چھپ کر کے کرو. صغیرہ گناہ کیا ہے اور کبیرہ گناہ کسے کہتے؟ اگر نماز قضا ہو جائے کسی مسلمان سے تو اسے کیسے ادا کریں؟ اور کیا قضا نماز مسجد میں پڑھنا گناہ ہے؟ اور ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو لوگ اپنی زبان سے گندی الفاظ نکالتے ہیں، گندی بات کرتے ہیں؟ اور جو بھی بندہ گندی بات لوگوں سے کرتا ہے اس بندے کا موت کیسے ہوتی ہے؟ اور کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ معزز سامعین اکرام، آئیے ان سب سوالوں کا جواب مفتی سلمان اجہری صاحب سے سنتے ہیں. یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے، تو آئیے محبت بھری انداز میں اچھی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو سماعت کرتے ہیں. اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ پورا سے دیکھ کر جائیں گے. اب یہاں پر ایک اور بات مسئلہ میں بتا دوں. نماز چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے. نماز ترک کرنا صغیرہ گناہ نہیں، چھوٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے. گناہ کبیرہ، بڑے گناہوں میں اس کا ذکر آیا ہے. جیسے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری گناہ کبیرہ ہے. اس طرح نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. یہ چھوٹ گئی آپ سے، ہم سے، کسی سے بھی چھوٹ گئی نماز، گناہ تو کیا. لیکن فقہاء کرام نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے، مسجد میں آ کر کے اگر تم قضا نماز پڑھتے ہو تو منع ہے، منع کیا گیا ہے. ہاں اگر اس انداز میں پڑھتے ہو کہ کسی کو معلوم نہیں پڑتا تو کوئی حرج نہیں. اب وہ مسئلہ میں بہت باریکی سے بتا رہا ہوں، میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے عشاء کی نماز تمہاری چھوٹ گئی، عشاء کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، یہ گناہ ہے. اور لوگوں کے سامنے آ کر کے بتا کر کے اس کی قضا پڑھو گے تو اظہار گناہ. تم نے سب کو بتایا کہ میری نماز چھوٹی تھی. تو گناہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا اور بڑا گناہ ہے. تم اگر قضا کر رہے ہو تو چھپ کر کے، ہاں اپنی نفل نمازوں کے درمیان، سنت نمازوں کے درمیان اگر قضا پڑھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو. اب یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سب ایک ہی حمام میں ہیں، یعنی سب کی قضا ہے، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے مسئلہ خراب نہیں. بزرگان دین پہلے اس پر بہت تنبیہ کرتے تھے. اگر کوئی ایک بندہ قضا نمازیں سب کو دکھا کے پڑھ رہا ہے تو سارے لوگ اسے گرفتار کر لیتے، پکڑتے ہیں کہ تو ایک گناہ کیا اور سب کو آ کر مسجد میں بتا رہا ہے. تو یہ پہلے کا یعنی ان بزرگوں کا ایک تقوی تھا. لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے، عشاء کی نماز قضا ہو گئی. قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ، 4 فرض اور 3 وتر. مسئلہ تو یہی ہے نا. کل کی عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹی، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے، آج وہ قضا کرنے کے لیے کھڑا ہے تو کیا کیا نمازیں قضا کرے گا؟ 4 رکعت فرض عشاء کی اور 3 رکعت واجب. یہ 2 نمازیں قضا ہوتی ہیں عشاء میں، یعنی کل 7 رکعت. وتر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے تیسری رکعت میں کیا کرنا رہتا ہے؟ دعائے قنوت. حنفی جتنے بھی ہیں پیروکار ان کو معلوم ہے تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پھر دوبارہ تکبیر باندھتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ آج بھی عشاء کی نماز پڑھیں آپ تو پڑھے ہوں گے نا دعائے قنوت. 3 واجب الوتر کی جو نماز ہے اس کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے. لیکن جب قضا نماز پڑھ رہے ہیں آپ،
कल की ईशा की कज़ा पढ़ने आए, 4 रकात फर्ज पढ़ लिया, किसी को नहीं मालूम, कज़ा पढ़ लिया आपने सुन्नत की जगह, 3 रकात वितर पढ़ रहे थे। हुक्म यह है कि दुआए कुनूत के लिए हाथ ना उठाओ, वरना देखने वाला समझ जाएगा कि ये अभी की नहीं कोई दूसरी पढ़ रहा है। हाँ, ईशा में तो हो सकता है ना समझे, क्योंकि ईशा में करंट नमाज भी एक, उसी वक्त की भी एक वितर है। जोहर के वक्त अगर कोई ईशा की कज़ा कर रहा था तो जाहिर सी बात है तीसरी रकात में जब वो खड़ा होकर के हाथ उठाएगा तो जो देखेगा वो समझ जाएगा कि ये वितर जोहर में क्यों पढ़ रहा है, वितर जोहर में क्यों पढ़ रहा है। तो गोया कि तुमने सबको अपने गुनाह का गवाह बनाया, कल की तुम्हारी कुछ छूटी थी वो आज आकर पढ़ रहे हो। गुनाह का गवाह ना बनाओ किसी को, इजहार गुनाह ये और बड़ा गुनाह है। ये मसला आपने समझ लिया होगा। अब अंदाजा करो, एक छूटी हुई नमाज को बंदा जब अदा करने आ रहा है तब शरीयत ने इतना हुक्म दिया है कि छुप करके करो। उन लोगों का क्या अंजाम होगा जो फहश कलामी अलल ऐलान करते हैं, रात को जिना हो गया है फलां के साथ, फलां हो गया है, उसको मजे लेकर के बयान करते हैं, उनका क्या अंजाम होगा। मियां, यहां नमाज की कज़ा के लिए भी शरीयत ने कहा है कि इस तरह पढ़ो कि लोगों को खबर ना हो, और लोगों की जो बुराइयां बयान करता है कट्टों पे बैठ करके, उसका क्या अंजाम है। सोचो इस बात को। कुरान की ये दोनों आयतें हमारे लिए इबरत है। अल्लाह ने फरमाया, एक तो ये जुबान से निकलने वाला कोई बुरा कलमा अल्लाह तुमसे हरगिज पसंद नहीं करता, और जब ऐसा बंदा मर जाता है जो फहश कलामी करता है, उसके मुंह से बदबू निकलती है ऐसी कि जहन्नम भी कांपने लगता है, यह हदीस में है। और दूसरी चीज जो आयत मैंने पढ़ी, इन तुबदू खैरन औ तुखफू, अगर तुम भलाई को अलल ऐलान करो या छुप कर करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे पसंद करता है, कबूल करता है। औ ताफू अंसू इन, एक और इसमें जिक्र है, अल्लाह फरमाता है या किसी की बुराई से दरगुजर कर दो, किसी के अंदर तुमने बुराई देखी उसे माफ कर दिया, फ़इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन क़दीरा, तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला कुदरत वाला है। एक बात याद रखें, माफ करना किसकी सिफत है? अल्लाह की सिफत, आप सबको मालूम है। रहम करना किसकी सिफत है? अल्लाह, और रहीम भी है, अफू भी है। ये दो आदतें अगर बंदा अपनाता है, बंदे के अंदर अगर रहम आया किसी के दिल के, किसी के लिए, और किसी को देख करके भी उसने माफ कर दिया, इस पर एक रिवायत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इस बंदे को अजाब देने में मुझे हया आती है कि रहम मेरी सिफत है, अफू मेरी सिफत है, मेरा बंदा होकर ये रहम कर रहा है और अफू कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अजाब से बरी करता है जो माफ करने की अपने अंदर क्षमता रखता है या ताकत रखता है। माफ करने का जज्बा जिसके अंदर है वो माफ किया जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, मन ला यरहम ला युरहम, जो किसी पर रहम नहीं करता क़यामत के दिन उस पर भी रहम नहीं होगा। ये समझ करके चलो, तुम पर भी रहम नहीं किया जाएगा। हाँ, रहम करना और माफ करना अगर किसी की आदत है, उम्मीद रखिए कि अल्लाह भी उस पर रहम करेगा और उसे माफ भी करेगा। आप अपने रब से अपने मुतालिक जैसी उम्मीद रखते हैं वैसी बंदों के साथ भी करें। मिसाल के तौर पर 100 गुना हो गए मेरे, 100 गुना हो गए, अल्लाह से तुम क्या उम्मीद रखते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत से तुम्हारी उम्मीद यही है कि मेरा मौला मुझे माफ करेगा, है कि नहीं? तुम अपने मुतालिक तो ये उम्मीद रखते हो, लेकिन तुम्हारे साथ जब किसी ने अल्लाह एक भी बुराई कर दी और 9 अच्छाइयां किया है, 10 में से 9 अच्छाइयां किया, एक बुराई किया, तुम उसको माफ करने की ताकत नहीं रखते। ये नहीं सोचते कि उसके पास 9 अच्छाइयां थी मेरे साथ, एक बुराई हो गई है, माफ कर दो उसको। तो ये एक बात याद रखो, तुम अपने रब से 100 गुना अपने माफ कराने की उम्मीद लेकर बैठे हो और अपने भाई के एक गुनाह को माफ करना नहीं चाहते, मिसाल है, तो फिर भूल जाओ तुम्हें भी कयामत के दिन माफ नहीं किया जाएगा। अब एक हदीस में सुनाता हूं,
माफ करने के मुतालिक यहाँ आई है, इसलिए हमारे मामलात होते हैं एक दूसरे के, मरने से पहले उम्मत मुस्तफ़ा को माफ करके मरो, कभी भी हो। बदले की भावना, इंतकाम का जज्बा ना रहे, अल्लाह के हवाले कर दो। मेरे साथ जिसने भी जो कुछ भी किया, अल्लाह तू मुंतकिम हकीकी है, तू ही देख ले, अपने मामला छोड़ दो अल्लाह के ऊपर। और रही बात किसी ने कुछ किया है तो माफ कर दो। जब तुम माफ करके मरोगे तो हो सकता है तुमने भी किसी को ठेस पहुंचाया होगा, या जुबानी या हाथ से, किसी भी तरह से अलग, उनके भी दिल जख्मी होंगे किसी न किसी के। अब ये रब ताला अपने जिम्मे करम पर लेता है, उनके दिलों को नरम करता है, वो भी तुम्हें माफ कर देते हैं जब तुम माफ करके दुनिया से जाओगे। मैं हदीस बता रहा था, हदीस ये है, दो भाइयों में तकरार हुई, झगड़ा हुआ, एक दूसरे से दोनों का कुछ न कुछ मुबाहसा हुआ, और तकरार के बाद दोनों अलग हुए झगड़े के बाद। लेकिन उनमें से एक भाई माफी मांगने के लिए आया दूसरे के पास। बात याद रखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो झगड़ों के बाद अपने भाई से माफी मांगने में जो पहल करेगा, वो क़यामत के दिन मेरे साथ पहले जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में भी पहले होगा। यही बात तो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के दरमियान हजरत फातिमा ने कहा था। दोनों छोटी उम्र के थे, 6 साल या 5 साल, दोनों में कुछ तकरार हुई, बचपने की बात, लड़ कर के आए सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास। आपके पास जैसी आए तो उन्होंने कहा, एक जुमला ये कहा, बेटा मुझे मालूम नहीं किसकी गलती है किसकी खता है। माँ फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही है, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन एक बात याद रख लो कि दोनों के तकरार से, दोनों के झगड़ों से कहीं अल्लाह दोनों से नाराज ना हो जाए, दोनों रोने लगे, कुछ भी हो जाए लेकिन मौला हमारा ना रूठे। तो हजरत फातिमा ने कहा, मैंने अपने अब्बा जान से हदीस सुनी है, जो माफी मांगने में पहल करता है, जो माफी मांगने में पहल करता है वो जन्नत में भी पहले जाएगा। अभी ये जुमला मुकम्मल ना होने को था, इमाम हुसैन छोटी उम्र के थे, दौड़ करके हजरत इमाम हसन के पास गए, कहा, बिरादर मोहतरम, जो कुछ भी हुआ हमारी तकरार, हमें माफ कर दें। अब दूसरे भाई का क्या मकाम है, ये भी हदीस पाक से सुन ले। माफ कर दिया तो खैर है, तुमने माफ कर दिया, कोई तुमसे माफी मांगने के लिए आया, माफ कर दिया। आज बहुत सारे ढीठ लोग बैठे हुए हैं, बहन आई है मनाने के लिए भाई को, नहीं मानता मैं, चल तूने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, पुरानी बातें याद की। भाई आया है, उसके घर में शादी है, चलो भैया आ जाओ, नहीं, पुराने गड़े मुर्दे निकाल करके भाई को रुखसत कर दिया, हम तुझे माफ नहीं करेंगे, जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। वो लोग भी सुन लें, तुम्हारी जिम्मेदारी थी माफी मांगने की, तुम माफी मांग लिए, बहुत अच्छा किए, क्योंकि पहले जन्नत में जाओगे। अब जिसके पास गए थे माफी मांगने के लिए, उसने नहीं माफ किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत के करीब भी ना आए। हुजूर ने फरमाया, मेरी शफाअत के करीब ना आए जो अपने भाई को माफ नहीं करना चाहता। तुमसे अगर तुम्हारा भाई मनाने के लिए आ गया, तुम्हारी बहन आ गई, तुम्हारा पड़ोसी आ गया, तुम्हारा रिश्तेदार आ गया, तो पहली बात तो ये सोच लो कि वो बाजी मार ले गया। माफी तो तुम्हें भी मांगना चाहिए था, पहल मैं क्यों ना करूं, लेकिन वो बाजी मार ले गया, जन्नत में पहले जाएगा। अब अगर तुमने माफ कर दिया तो खैर है, नहीं माफ करा तो कल क़यामत के दिन शफाअत रसूल से भी महरूम हो जाओगे। अब रसूल अगर शफाअत ना करें, किसके पास जाओगे? वहां तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर कोई कह रहे हैं इज़हबू इला गैरी, जाओ मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। किसके पास जाओगे? अगर नबी भी मना कर दें, जाओ तुम्हारी शफाअत मेरे पास नहीं। तो आप लोगों ने सुना नाजरीन कि जो लोग गंदी बात करते हैं उसकी मौत के वक्त मुंह से गंदी बदबू आती है। तो हम सबको चाहिए कि गंदी बात से बचे और गुनाहों से तौबा करें, और अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह हम सबको नज़ा के वक्त जलवाए महबूब दिखा। अल्लाह पाक हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा
अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज्जज़ सामीन इकराम, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम इसी तरह का वीडियो मालूमात भरी हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं।